حضرت جگر کا نام محمد علی سکندر تھا، تخلص جگر۔ آپ مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی قطعی تاریخ پیدائش بتانا تقریباً ناممکن ہے۔ حضرت جگر کو خود بھی اپنی تاریخ پیدائش کا صحیح علم نہیں تھا۔ تاریخ اور مہینہ تو خیر انہیں پتہ ہی نہیں تھا، البتہ سال وہ 1890 بتاتے تھے۔ جگر صاحب خود کو شیخ صدیقی بتاتے تھے۔ ان کے خاندان کا شجرہ نسب ان کے تایہ زاد بھائی محمد احمد کے پاس محفوظ تھا، جس کے مطابق جگر صاحب کا سلسلہ 30 واسطوں سے حضرت شہاب الدین سہروردی اور 36 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا تھا۔ ان کی ایک غزل کے کچھ اشعار: وہ احساس شوق جواں اول اول، وہ احساس شوق جواں اول اول، وہ ایک عالم گلفشاں اول اول، تخیل میں رنگینیاں رفتہ رفتہ، تصور میں تصویر جاں اول اول، وہ ایک پیکر حسن معصوم و سادہ، وہ ایک جلوہ بے اما اول اول، جگر آہ انجام و آغاز الفت، سکوت آخر آخر فغاں اول اول۔ حضرت جگر کی کلام ہمیں سنائیں گے جناب شہزاد بصیر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ صدر صاحب اگر اجازت ہو، جگر مراد آبادی صاحب کی ایک غزل ہے: اس رخ پہ ازدحام نظر دیکھتا ہوں میں، کانٹوں کی گود میں گلے تر دیکھتا ہوں میں، اس رخ پہ ازدحام نظر دیکھتا ہوں میں، کانٹوں کی گود میں گلے تر دیکھتا ہوں میں، تاثیر التفات نظر دیکھتا ہوں میں، تاثیر التفات نظر دیکھتا ہوں میں، کونین اپنے زیر اثر دیکھتا ہوں میں، روب جمال و جذب محبت تو دیکھنا، روب جمال و جذب محبت تو دیکھنا، اٹھتی نہیں نگاہ مگر دیکھتا ہوں میں، تنہا نہیں ہے عشق ہی رسوائے جستجو، تنہا نہیں ہے عشق ہی رسوائے جستجو، خود حسن کو بھی گرم سفر دیکھتا ہوں میں، محو خرام ناز ہیں صحن چمن میں وہ، محو خرام ناز ہیں صحن چمن میں وہ، گستاخی نسیم سحر دیکھتا ہوں میں، شاید انہیں بھی اس کی خبر ہونا اے جگر، شاید انہیں بھی اس کی خبر ہونا اے جگر، در پردہ نظر جو نظر دیکھتا ہوں میں، اس رخ پہ ازدحام نظر دیکھتا ہوں میں، کانٹوں کی گود میں گلے تر دیکھتا ہوں میں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ شہزاد صاحب۔ جگر صاحب کے بزرگوں میں مولوی محمد سمیع صاحب مغل بادشاہ فرخ سیر کے اتالیق تھے۔ جگر کے پردادا حافظ محمد نور، دادا حافظ امجد علی اور والد محمد علی نظر سب شاعر تھے۔ جگر صاحب کے تایا علی اکبر اور چچا علی ظفر بھی شاعر تھے۔ جگر صاحب کے دادا کا ایک شعر ہے: لطف جانا رفتہ رفتہ آفت جاں ہو گیا، لطف جانا رفتہ رفتہ آفت جاں ہو گیا، ابر رحمت اس طرح برسا کہ طوفاں ہو گیا۔ ان کے والد کا ایک شعر ہے: وہ یہاں آئے ہم وہاں پہنچے، وہ یہاں آئے ہم وہاں پہنچے، ان کو شکوہ ہمیں گلا نہ رہا۔ اور حضرت جگر کے چچا علی ظفر جو ظفر تخلص کرتے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کا بھی تخلص ظفر تھا، تو اس پہ کہتے ہیں: ہو ہی جاتا ہے تخلص پہ ظفر کا دھوکہ، ہو ہی جاتا ہے تخلص پہ ظفر کا دھوکہ، اے ظفر بندش اشعار کروں یا نہ کروں۔ اور اب ہم جگر کا کلام سنیں گے جناب جاوید عمرانی صاحب سے۔ دل ہنسی ہے تو محبت بھی ہنسی پیدا کر۔ صدر محترم ڈاکٹر طاہر صاحب، آپ کی اجازت سے۔ پہلے تو حسن عمل
حسن یقین پیدا کر، پہلے تو حسن عمل حسن یقین پیدا کر، پھر اسی خاک سے فردوس بریں پیدا کر۔ یہی دنیا کے جو بت خانہ بنی جاتی ہے، یہی دنیا کے جو بت خانہ بنی جاتی ہے، اسی بت خانے سے کعبے کی زمین پیدا کر۔ یہی دنیا کے جو بت خانہ بنی جاتی ہے، اسی بت خانے سے کعبے کی زمین پیدا کر۔ روح آدم نگراں کب سے ہے تیری جانب، روح آدم نگراں کب سے ہے تیری جانب، اٹھ اور ایک جنت جاوید یہیں پیدا کر۔ غم میسر ہے تو اس کو غم کونین بنا، غم میسر ہے تو اس کو غم کونین بنا، دل ہنسی ہے تو محبت بھی ہنسی پیدا کر۔ دل کے ہر قطرے میں طوفان تجلی بھر دے، دل کے ہر قطرے میں طوفان تجلی بھر دے، بدن ہر ذرے سے ایک مہر مبیں پیدا کر۔ بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن ناز جس پہ کریں سجدے وہ جبیں پیدا کر۔ بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن ناز جس پہ کریں سجدے وہ جبیں پیدا کر۔ پستی خاک پہ کب تک تیری بے بال و پری، پستی خاک پہ کب تک تیری بے بال و پری، پھر مقام اپنا سر عرش بریں پیدا کر۔ مقطع حاضر ہے۔ عشق ہی زندہ و پائندہ حقیقت ہے جگر، عشق ہی زندہ و پائندہ حقیقت ہے جگر، عشق کو عام بنا ذوق یقین پیدا کر، پہلے تو حسن عمل حسن یقین پیدا کر۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ فروخ سیر کی وفات کے بعد جگر صاحب کے آبا پر عتاب شاہی نازل ہوا اور یہ پورا خاندان دہلی سے ہجرت پر مجبور ہو گیا۔ یہ خاندان کس بادشاہ کے زمانے میں عتاب کا شکار ہوا اور کیوں، یہ تحقیق طلب ہے۔ اس خاندان کے کچھ افراد اعظم گڑھ میں مقیم ہوئے اور باقی لوگوں نے مراد آباد میں سکونت اختیار کی۔ جگر صاحب کا تعلق خاندان کے اس حصے سے ہے جو مراد آباد میں آباد ہوا۔ ان کی ایک غزل کے چند اشعار۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ یا رب یہ مقام عشق ہے کیا، گو دیدہ و دل ناکام نہیں، تسکین ہے اور تسکین نہیں، آرام ہے اور آرام نہیں۔ کیوں مست شراب عیش و طرب تکلیف توجہ فرمائیں، کیوں مست شراب عیش و طرب تکلیف توجہ فرمائیں، آواز شکست دل ہی تو ہے آواز شکست جام نہیں۔ اور آپ ان کا کلام سنتے ہیں جناب ارشاد خان صاحب سے۔ عشق کو بے نقاب ہونا تھا۔ اجازت صاحب۔ عشق کو بے نقاب ہونا تھا، عشق کو بے نقاب ہونا تھا، آپ اپنا جواب ہونا تھا، مست جام شراب ہونا تھا، مست جام شراب ہونا تھا، بے خودی اضطراب ہونا تھا، تیری آنکھوں کا کچھ قصور نہیں، تیری آنکھوں کا کچھ قصور نہیں، ہاں مجھی کو خراب ہونا تھا، آؤ مل جاؤ مسکرا کے گلے، آؤ مل جاؤ
मुस्कुरा के गले हो चुका जो अताब होना था। कूचे इश्क में निकल आया, कूचे इश्क में निकल आया, जिसको खाना खराब होना था। कूचे इश्क में निकल आया, कूचे इश्क में निकल आया, जिसको खाना खराब होना था। मस्त जामे शराब खाक हुए, मस्त जामे शराब खाक हुए, गर्क जामे शराब होना था। दिल के जिस पर है नक्श रंगारंग, दिल के जिस पर है नक्श रंगारंग, उसको सादा किताब होना था। हाय वो लम्हे सुकून के जिसे, हाय वो लम्हे सुकून के जिसे महशर इस्तराब होना था। क्यों नजर हैरतों में डूब गई, क्यों नजर हैरतों में डूब गई, मौजे सद इस्तराब होना था। हो चुका रोज अव्वली ही जिगर, हो चुका रोज अव्वली ही जिगर, जिसको जितना खराब होना था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरशाद खान साहब। जिगर साहब की तालीम का मामला ये है कि जनाब महमूद अली खान साहब ने अपनी किताब नज़र जिगर में जिगर साहब को इंटर पास लिखा है, जबकि उनके भाई अली मुजफ्फर साहब का बयान है कि जिगर और उनके तायाजाद भाई मोहम्मद अहमद साहब ने लखनऊ के मशहूर पब्लिक स्कूल सेंटिनियल स्कूल में तालीम पाई। इस स्कूल में ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी था। जिगर साहब 9वीं क्लास में 2 दफ़ा फ़ेल हुए। उसके बाद पढ़ाई से दिल उचाट हो गया और तालीमी सिलसिला तर्क कर दिया। उनकी एक गज़ल में से चंद अशार। जब से तू मेहरबान है प्यारे, जब से तू मेहरबान है प्यारे, दिल और बदगुमान है प्यारे। तू कहाँ ये गरीब खाना कहाँ, तू कहाँ ये गरीब खाना कहाँ, वहम है या गुमान है प्यारे। सच बता इसमें कोई बात भी है, सच बता इसमें कोई बात भी है, या यूं ही मेहरबान है प्यारे। और मकता है, तेरा दीवाना गरीब जिगर, तेरा दीवाना गरीब जिगर, फ़ख्र हिंदुस्तान है प्यारे। और अब उनका कलाम सुनाते हैं जनाब अब्दुस्तार गज़ाली साहब। ख़वातीन हज़रात आदाब। ये जो है जिगर साहब का ताल्लुक़ मुरादाबाद से था और मेरी भी क्या कहते हैं मुरादाबाद से एक एसोसिएशन है कि मेरी वालदा मुरादाबाद से थी। तो बहरहाल ये अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे मुंतज़मीन से जो प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं, जब मैं करता नहीं हूँ। जनाब जिगर साहब फरमाते हैं, अरबाबे मकामात अरबाब जाँ और भी हैं, मकामात अरबाब जाँ और भी हैं, मकां और भी हैं, ला मकां और भी हैं, मकां और भी हैं, ला मकां और भी हैं। मुकम्मल नहीं है जुनून तजस्सुस, मुकम्मल नहीं है जुनून तजस्सुस, मुसलसल जहाँ दर जहाँ और भी हैं, मुसलसल जहाँ दर जहाँ और भी हैं। यहीं तक नहीं इश्क की सैर गाहें, यहीं तक नहीं इश्क की सैर गाहें, महो अंजुमो कहकशां और भी हैं।
मोहब्बत की मंजिल ही शायद नहीं है, मोहब्बत की मंजिल ही शायद नहीं है कि जब देखिए इम्तहां और भी हैं। मोहब्बत नहीं सिर्फ मकसूद इंसान, मोहब्बत नहीं सिर्फ मकसूद इंसान, मोहब्बत में कारे जहां और भी हैं। चलिए, कफस तोड़कर मुतमईन हो न बुलबुल, कफस तोड़कर मुतमईन हो न बुलबुल, कफस सूरते आशियाँ और भी हैं। क्या खूबसूरत शेर है। कफस सूरते आशियाँ और भी हैं, बहुत दिल के हालात कहने के काबिल, वराए निगाहो ज़बां और भी हैं। नहीं मुनहसिर कुछ, नहीं मुनहसिर कुछ मैं वो मैं कदा तक, तेरी तिश्ना सामानियाँ और भी हैं। बड़ी लंबी हो गई है, मेरा ख्याल है इसको कट शॉर्ट कर दूँ। अगर आप वक्त हुक्म करें जी, मैं तो हुकूमत दावेदार हूँ साढ़े। इन्हें जब से है एतमाद मोहब्बत, इन्हें जब से है एतमाद मोहब्बत, वो मुझसे जिगर बदगुमां और भी हैं, और मकां और भी हैं, लामकां और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया गजाली साहब। जिगर साहब ने बाकायदा तालीम हासिल करने से पहले अरबी और फ़ारसी अपने वालिद के पीर भाई और अपने अहद के ज़बरदस्त आलिम मौलवी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब से पढ़ी थी। फ़ारसी का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था। कहा जाता है कि उन्हें हाफिज़, सादी, रूमी और खुसरो के बेशुमार अशार याद थे। जिगर साहब ने फ़ारसी में इतनी इस्तेदाद हासिल कर ली थी कि अपने वालिद से फ़ारसी में गुफ्तगू करते थे। यही वजह है कि अगरचे उनकी स्कूल की तालीम बहुत महदूद थी, लेकिन इल्म के मामले में वो अपने अहद के किसी भी शायर से कम नहीं थे। फ़ारसी पर उनकी महारत का एक बड़ा सबूत ये भी है कि उन्होंने अपनी शायरी की इब्तिदा फ़ारसी से की थी। चूँकि फ़ारसी की बात हो रही है तो हज़रत जिगर की एक फ़ारसी गज़ल के 3 अशआर जिन साहब ने तर्जुमा करना था वो आए नहीं, इसलिए मैं सिर्फ गज़ल पढ़ देता। हमा होश इश्कम हमा सोज़ जानम, हमा होश इश्कम हमा सोज़ जानम, हज़र ए जवाना के पीरे जहानम। न इसमम न जिस्मम न ऐनम न आनम, चिराज़े अयानम चे सिर्रे निहानम। जहाँ अज़ मनो मंज़ जाने मोहब्बत, बजाने मोहब्बत के जाने जहानम। उनके उर्दू गज़ल के 3 अशार। आके तुझ बिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं, आके तुझ बिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। हाय रे मजबूरियाँ तर्के मोहब्बत के लिए, मुझको समझाते हैं वो और उनको समझाता हूँ मैं। मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं। और अब हम जिक्र का कलाम सुनेंगे मोहतरमा मिराज गजाली साहिबा से। शबे फिराक है और नींद आई जाती है, कुछ इसमें उनकी तवज्जो भी पाई जाती है। शबे फिराक है और नींद आई जाती है, कुछ इसमें उनकी तवज्जो भी पाई जाती है। ये उम्र इश्क यूं ही क्या गंवाई जाती है, हयात जिंदा हकीकत बनाई जाती है। बना बना के जो दुनिया मिटाई जाती है, ज़रूर कोई कमी है कि पाई जाती है। हमी पे इश्क की तोहमत लगाई जाती है, मगर शर्म जो चेहरे पे छाई जाती है, खुदा करे कि हकीकत में, खुदा करे कि हकीकत में ज़िंदगी बन जाए, वो ज़िंदगी जो ज़बां तक ही पाई जाती है।
गुनाहगार के दिल से बच के चल जाहिद, गुनाहगार के दिल से बच के चल जाहिद, यहीं कहीं तेरी जन्नत भी पाई जाती है, यहीं कहीं तेरी जन्नत भी पाई जाती है। न सोज़े इश्क न बरके जमाल पे इल्ज़ाम, दिलों में आग खुशी से लगाई जाती है। कुछ ऐसे भी हैं रिंदान पाक बाज जिगर, कुछ ऐसे भी हैं रिंदान पाक बाज जिगर कि जिनको बेमें बसागर पिलाई जाती है। शब फिराक है और नींद आई जाती है, कुछ इस तरह, कुछ इसमें उनकी भी तवज्जो पाई जाती है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिराज गजाली साहब। ज़ामन अली ख़ान साहब लिखते हैं, हमारी मालूमात के मुताबिक हज़रत जिगर ने सिर्फ़ एक कारोबार किया था और वो था चश्मों की तजारत, ग्लासेस। वो एक चश्मे बनाने वाली कंपनी के एजेंट थे। इस सिलसिले में उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने का सफ़र किया। अगरचे उनका काम चश्मे बेचना था, लेकिन उन्होंने आंखें टेस्ट करने में भी गैर मामूली महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने इस सिलसिले में मुरादाबाद, आज़मगढ़ और लाहौर की एक फर्म में भी काम किया। ये नहीं मालूम हो सका कि जिगर ने कब तक मुलाजमत की और कब ये मुलाजमत तर्क कर दी और क्यों तर्क की। शायद इसकी वजह शायर की हैसियत से जिगर साहब की मकबूलियत थी और मुशायरों में जाना उनकी मुलाजमत में रुकावट बनता था। ये मुलाजमत तर्क करने के बाद सिर्फ शायरी ही उनका ज़रिया माश रहा। इब्तदा में उन्हें कुछ माली दुश्वारियों का सामना रहा, लेकिन ज़िंदगी के बड़े हिस्से में वो आसूदा हाल रहे। उनकी एक नज़्म दर्द जिगर में से चंद अशार। राज जो सीना ए फितरत में नेहा होता है, राज जो सीना ए फितरत में नेहा होता है, सबसे पहले दिल शायर में आया होता है। जब कोई इश्क में बर्बाद जहां होता है, मुझको महसूस खुद अपना ही ज़िया होता है। हाय वो वक्त कि जब हुस्न पे आता है शबाब, उफ वो हंगाम कि जब इश्क जवां होता है। और वक्त आता है कि एक ऐसा भी मोहब्बत में कि जब, वक्त आता है एक ऐसा भी मोहब्बत में कि जब दिल पे एहसास मोहब्बत भी गरा होता है। अब उनका कलाम सुनते हैं हम जनाब तसद्दुक़ अतारी साहब से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आदाब अर्ज़ इजाज़त है। गुदाज़ इश्क नहीं कम, गुदाज़ इश्क नहीं कम, जो मैं जवान न रहा। गुदाज़ इश्क नहीं कम, जो मैं जवान न रहा। वही है आग, मगर आग में धुआं न रहा। नहीं कि दिल मेरा वक्फ़े गमे निहा न रहा, नहीं कि दिल मेरा वक्फ़े गमे निहा न रहा, मगर वो शेवाए फरसूदे बयान न रहा। ज़हे वो शौक़ जो पाबंद ई ओ आन न रहा, ज़हे वो शौक़ जो पाबंद ई ओ आन न रहा। खुशा वो सजदा जो महदूद आस्तां न रहा। हिजाब इश्क को ए दिल बहुत गनीमत जान, हिजाब इश्क को ए दिल बहुत गनीमत जान। मेरी बला से अगर मेरा आशियाँ न रहा, मेरी बला से अगर मेरा आशियाँ न रहा। जुनून सजदा की मेराज है यही शायद, जुनून सजदा की मेराज है यही शायद, कि तेरे दर के सिवा कोई आस्तां न रहा।
कमाल कुर्ब भी शायद है ऐने बौदे जिगर, कमाल कुर्ब भी शायद है ऐने बौदे जिगर, जहाँ जहाँ वो मिले मैं वहाँ वहाँ न रहा, गुदाज इश्क नहीं कम जो मैं जवान न रहा, वही है आग मगर आग में धुआं न रहा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ तारी साहब। ज़ामन अली ख़ान साहब अपनी किताब जिगर एक मुतालिया में लिखते हैं, जिगर साहब की रूमानी ज़िंदगी की कई दास्तानें मशहूर हैं। हकीकत में जिगर हुस्न परस्त थे मगर बुअल हवस न थे। उनका ये शेर उनके मिजाज की तर्जुमानी करता है, हुस्न जिस रंग में होता है जहाँ होता है, हुस्न जिस रंग में होता है जहाँ होता है, अहले दिल के लिए सरमाए जाँ होता है। जिगर क़याम आगरा के दौरान एक खातून वहीदन बजनौरी पर आशिक हुए। कहा जाता है कि जिगर चश्मों की जिस कंपनी में काम करते थे उसके मालिक का नाम मोहम्मद आकिल था और वहीदन बजनौरी आकिल की दूर की रिश्तेदार थी। जिगर की इस खातून से मुलाकात हुई। ये मुलाकात बहुत जल्द मोहब्बत में बदल गई और नौबत यहाँ तक पहुँची कि जिगर ने उस खातून से शादी कर ली। शादी के कुछ ही अरसा बाद जिगर को कारोबार के सिलसिले में लंबे सफ़र पर जाना था। कंपनी के मालिक मोहम्मद आकिल ने सफ़र के लिए जो अखराजात दिए वो तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा थे। जिगर को कुछ शुबा हो गया और वो अगले ही ट्रेन स्टेशन से वापस आ गए। घर पहुंचे तो आकिल वहां मौजूद थे और वहीदन बजनौरी के पास बैठे बातें कर रहे थे। उन दोनों ने अपनी पाक दामनी की बहुत कस्में खाईं मगर जिगर को यकीन नहीं आया। जिगर फौरन ही मुरादाबाद से इस तरह चले गए कि बरसों उधर का रुख नहीं किया। उनकी एक और गज़ल के चंद अशार, मिलती है उम्र अबद इश्क के मैखाने में, मिलती है उम्र अबद इश्क के मैखाने में, ए अजल तू भी समा जा मेरे पैमाने में। हम कहीं आते हैं वाइस तेरे बहकाने में, हम कहीं आते हैं वाइस तेरे बहकाने में, इसी मैखाने की मट्टी इसी मैखाने में। सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है मैखाने में, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है मैखाने में, खुल्द शीशे में है फिरदौस मैखाने में। और बाम पे आके उठा दो रुख ताबा से नकाब, बाम पे आके उठा दो रुख ताबा से नकाब, एक इजाफा और सही तूर के अफसाने में। और मशवरे होते हैं जो शेख बरहमन में जिगर, मशवरे होते हैं जो शेख बरहमन में जिगर, रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैखाने में। और अब हम उनका कलाम सुनते हैं जनाब हातिम रानी साहब से। शुक्रिया। जो आंसू आँख से टपके वो नज़रों से निहा क्यों हो, जो आंसू आँख से टपके वो नज़रों से निहा क्यों हो, इलाही हासिल दर्द मोहब्बत रायगा क्यों हो। यही मंशाए जाना है तो अफशा राज जाँ क्यों हो, कमाल ज़ब्त भी ए दिल एक अंदाज़े बयां क्यों हो। ये जिगर साहब के शेर थे। शायर व नगमा रंग व निकहत जाम व सहबा हो गया, शायर व नगमा रंग व निकहत जाम व सहबा हो गया, जिंदगी से हुस्न निकला और रुस्वा हो गया। और भी आज और भी हैं, और भी आज और भी हर जख्म गहरा हो गया,
बस करे चश्मे पशीमा काम अपना हो गया। इसको क्या कीजिए ज़बाने शौक़ को चुप लग गई। इसको क्या कीजिए ज़बाने शौक़ को चुप लग गई, जब ये दिल शाइस्ता-ए अर्ज़े तमन्ना हो गया। अपनी अपनी वुसअते फ़िक्रो यक़ीन की बात है, अपनी अपनी वुसअते फ़िक्रो यक़ीन की बात है, जिसने जो आलम बना डाला वो उसका हो गया। जिसने जो आलम बना डाला वो उसका हो गया। हमने सीने से लगाया दिल न अपना बन सका। हमने सीने से लगाया दिल न अपना बन सका। मुस्कुरा कर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। मुस्कुरा कर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। मैंने जिस बुत पर नज़र डाली जुनून शौक़ में, मैंने जिस बुत पर नज़र डाली जुनून शौक़ में, देखता क्या हूँ वो तेरा ही सरापा हो गया। देखता क्या हूँ वो तेरा ही सरापा हो गया। उठ सका हमसे न बारे इल्तिफ़ाते नाज भी, उठ सका हमसे न बारे इल्तिफ़ाते नाज भी। मरहबा वो जिसको तेरा गम गवारा हो गया। वो चमन में जिस रविश से होके गुजरे बेनकाब, वो चमन में जिस रविश से होके गुजरे बेनकाब, दफ़अतन हर एक गुल का रंग गहरा हो गया। शश जहत आईनाए हुस्ने हकीकत है जिगर, शश जहत आईनाए हुस्ने हकीकत है जिगर। कैस दीवाना था महवे रूए लेला हो गया। शायर व नग़मा रंगो निकहत जाम सहबा हो गया। जिंदगी से हुस्न निकला और रुसवा हो गया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हातिम रानी साहब। जनाब ज़ामिन मुरादाबादी ने हज़रत जिगर का जो हुलिया बयान किया है, उसके मुताबिक जिगर सरापा शायर थे। हमेशा खोई खोई और बहके बहके रहते थे। चूड़ीदार पाजामा, कभी अलीगढ़ पाजामा, उसके ऊपर कुर्ता, शेरवानी, बालों वाली टोपी, जेब में पानों की डिबिया, छालिया का बटवा जिसकी डोरियां बाहर को निकली हुई, पैरों में पंप और कमरबंद अक्सर लटका हुआ। हज़रत जिगर खूबसूरत और वजीह इंसान नहीं थे, तस्वीर, लेकिन अपनी शराफत, तहजीब व इखलाक, शगुफ्तगी और वालहानापन से पहली नज़र में आदमी का दिल जीत लिया करते थे। उनका हुलिया ऐसा शायराना था कि बताने की ज़रूरत ही ना थी कि वो शायर हैं। हज़रत जिगर का ये शेर ख़ुद उनके मिजाज की अक्कासी करता है। तबीयत शगुफ्ता मगर खोई खोई, तबीयत शगुफ्ता मगर खोई खोई, हर अंदाज दिलकश मगर वालेहाना। जिगर साहब का एक लतीफ़ा है कि उनके एक बहुत ही बेतकल्लुफ़ दोस्त उनकी फ़ोटो लेने लगे, तो जिगर फ़ौरन बोले कि हुजूर मेरी तस्वीर ऐसी नहीं आती कि आप घर में सजा सकें। दोस्त बोले हुजूर सजाने के लिए नहीं, बच्चों को डराने के लिए ले जाए। और अब हम हज़रत जिगर का कलाम सुनते हैं जनाब मुजीब रहमान साहब से। ख़वातीन हज़रात सलाम अदाब, इजाज़त है। इस गज़ल समझिए, नज़म समझिए, इसका टाइटल है आजकल। फ़िक्रे जमील ख्वाब परेशान है आजकल। फ़िक्रे जमील ख्वाब परेशान है आजकल। शायर नहीं है वो जो गज़ल खां है आजकल। साज़े हयात साज़े शिकस्ता है इन दिनों। साज़े हयात साज़ शिकस्ता है इन दिनों। बज़्म ख़याल जन्नत वीरां है आजकल। आँखें तमाम
مشہد عشق و جمال ہیں، آنکھیں تمام مشہد عشق و جمال ہیں، سینہ تمام گنج شہیداں ہے آج کل۔ انسانیت کی جس سے عبارت ہے زندگی، انسانیت کے جس سے عبارت ہے زندگی، انسان کے سائے سے بھی گریزاں ہے آج کل۔ دل کی جراحتوں کے کھلے ہیں چمن چمن، اور اس کا نام فصل بہاراں ہے آج کل۔ صحن چمن میں بوئے وفا کا پتہ نہیں، صحن چمن میں بوئے وفا کا پتہ نہیں، رنگے رخ بہار پر افشاں ہے آج کل۔ تحصیل علم و کسب خطابت کے باوجود، تحصیل علم و کسب خطابت کے باوجود، تہذیب نفس سر بہ گریباں ہے آج کل۔ یہ آخری شعر ہے۔ کیسا خلوص کس کی محبت کہاں کا درد، کیسا خلوص کس کی محبت کہاں کا درد، خود زندگی متاع گریزاں ہے آج کل۔ بہت شکریہ مجیب صاحب۔ حضرت جگر کے مین پوری میں قیام کے دوران ان کی رومانی زندگی کا ایک اور رومانی واقعہ ہوا۔ شیرازن نامی ایک طوائف تھیں، جگر ان کا گانا سننے جاتے تھے۔ شیرازن ادب فہم اور جگر کے کلام کی قدردان تھیں، وہ زیادہ تر جگر کی ہی غزلیں گاتی تھیں۔ ان دونوں کے تعلقات بڑھے اور شیرازن نے شادی کی دعوت دی، لیکن جگر راضی نہیں ہوئے۔ جگر کی اس محبت کی جھلکیاں ان کے مجموعہ کلام شعلہ طور میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی رومان کی کچھ داستانیں ہیں، لیکن وہ خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کی غزل کے 2-3 اشعار: وہ جو روٹھیں یوں منانا چاہیے، وہ جو روٹھیں یوں منانا چاہیے، زندگی سے روٹھ جانا چاہیے۔ وہ جو روٹھیں یوں منانا چاہیے، زندگی سے روٹھ جانا چاہیے، اور ہمت قاتل بڑھانا چاہیے، ہمت قاتل بڑھانا چاہیے، زیر خنجر مسکرانا چاہیے۔ اور مکتا ہے: ان سے ملنے کو تو کیا کہیے جگر، بہت خوبصورت بات کہی ہے نا، ان سے ملنے کو تو کیا کہیے جگر، خود سے ملنے کو زمانہ چاہیے۔ اور اب ہمیں جگر کا کلام سنائیں گے جناب عاصم باجوہ صاحب۔ شکریہ طاہر صاحب۔ ایک غزل کے چند اشعار آپ کی اجازت سے۔ کلام جگر کا ہے، انتخاب ڈاکٹر طاہر کا، اصلاح ارشد رشید صاحب کی، اور پیش میں کر رہا ہوں۔ کوئی کچھ کمی رہ گئی تو قصور صرف میرا ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ یہ غالباً جگر نے اردو اکیڈمی کے بارے میں کہا تھا۔ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں۔ ناگیش بھائی، بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ میری زبان پہ شکوائے اہل ستم نہیں، میری زبان پہ شکوائے اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ یا رب ہجوم درد کو دے اور وسعتیں، یا رب ہجوم درد کو دے اور وسعتیں، دامن تو کیا ابھی میری آنکھیں بھی نم نہیں، دامن تو کیا ابھی میری آنکھیں بھی نم نہیں۔ اور یہ اس شعر پہ غور کریں: زاہد کچھ اور ہو نہ ہو میں خانے میں مگر، زاہد
कुछ और हो न हो मैं खाने में, मगर क्या कम ये है कि फितनाए दैरो हरम नहीं, क्या कम ये है कि फितनाए दैरो हरम नहीं। मैं खाने के और बहुत फितने हैं। बड़े मुतासिर हुआ मैं खाने से। बिल्कुल। तो मक्ता पेश है। मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें हैं अश्क रेज, मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें हैं अश्क रेज। एक सानेहा सही मगर इतना अहम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिम बाजवा साहब। हज़रत जिगर बेनियाज आदमी थे, कभी अपने लिए भाग दौड़ नहीं करते थे। उन्हें कुदरत पर भरोसा था। वो अक्सर कहा करते थे, तकदीर से ज़्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। फिल्म वाले खुद उनकी तरफ मतवज्जो हुए। कई फिल्म कंपनियों ने आपको एडवांस दे दिए कि जब जी चाहे गीत लिखकर भेज दीजिएगा। जिगर साहब फिल्मी दुनिया में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने सब रुपया वापस कर दिया, लेकिन अपने अजीज़ दोस्त फजली इलाहाबादी के मुसलसल इसरार पर एक फिल्म आसमानी मुशायरा में हज़रत दाग देहलवी का पार्ट अदा किया। ये फिल्म इस लिहाज से भी अहम थी कि इसमें मौलाना अब्दुल हक मौलाना हाली बने थे, वहशत कलकतवी गालिब बने और ख्वाजा हसन नज़ामी नज़ीर अकबराबादी बने थे। ये फिल्म तकसीम हिंद के फसादात में ज़ाया हो गई। उनकी गज़ल में से चंद अशार, इससे आपको इकबाल का कलाम याद आ जाएगा। गमे आशिकी का सिला चाहता हूँ, खुद अपनी नज़र से गिरा चाहता हूँ। गमे आशिकी का सिला चाहता हूँ, खुद अपनी नज़र से गिरा चाहता हूँ। मोहब्बत बक़ैदे वफ़ा चाहता हूँ, मोहब्बत बक़ैदे वफ़ा चाहता हूँ। बड़ा ना समझूँ ये क्या चाहता हूँ। वो यूं पुरसशे शौक़ फरमा रहे हैं, वो यूं पुरसशे शौक़ फरमा रहे हैं, कोई खुद ये कह दे सज़ा चाहता हूँ। और मोहब्बत ही अपना भी मज़हब है, लेकिन मोहब्बत ही अपना भी मज़हब है, लेकिन तरीक़े मोहब्बत जुदा चाहता हूँ। और आप जिगर साहब का कलाम सुनाएंगे जनाब अरविंद कुमार साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिगर मुरादाबादी साहब के गज़ल के चंद शेर। मोहब्बत में क्या ये सितम देखते हैं, मोहब्बत में क्या ये सितम देखते हैं, बहुत फुर्सते शौक़ कम देखते हैं। गमो दर्दो रंजो अलम देखते हैं, गमो दर्दो रंजो अलम देखते हैं। मोहब्बत दिखाती है हम देखते हैं। वहाँ अपनी हस्ती को हम देखते हैं, वहाँ अपनी हस्ती को हम देखते हैं, जहाँ मौत का सर कलम देखते हैं। और कहाँ तेरे जलवे, कहाँ तेरे जलवे, कहाँ अपनी नजरें। गनीमत है जो कोई दम देखते हैं। वो क्या देख सकते हैं अपनी अदाएं, वो क्या देख सकते हैं अपनी अदाएं। हम ही देखते हैं जो हम देखते हैं। निगाहे मोहब्बत दिखाती है सब कुछ, निगाहे मोहब्बत दिखाती है सब कुछ। न तुम देखते हो न हम देखते हैं। निगाहे मोहब्बत दिखाती है सब कुछ, न तुम देखते हो न हम देखते हैं। न जाने मोहब्बत है क्या चीज़, लेकिन न जाने मोहब्बत है क्या चीज़, लेकिन बड़ी ही मोहब्बत से हम देखते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अरविंद कुमार साहब।
जिगर साहब को असगर गौंडवी साहब से बहुत अकीदत थी। वो भी जिगर से बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए असगर गौंडवी ने अपनी साली नसीम से जिगर की शादी करा दी। नसीम मौलवियों के ख़ानदान से थीं। जिगर की आज़ाद मिजाजी और शराब नोशी इस ख़ानदान को पसंद नहीं आई। जब बात हद से बढ़ गई तो असगर गौंडवी ने जिगर को मशवरा दिया कि वो नसीम को तलाक दे दें। जिगर ने फ़ौरन हुक्म की तामील की। असगर गौंडवी साहब की कोई औलाद नहीं थी। उनकी बीवी ने असगर से इसरार किया कि वो नसीम से शादी कर लें। मुमकिन है खुदा उनकी सुन ले। असगर गौंडवी ने बीवी को तलाक दे दी और नसीम से शादी कर ली, लेकिन फिर भी औलाद से महरूम रहे। जिगर ने नसीम को तलाक तो दे दी, लेकिन उनकी मोहब्बत दिल में बदस्तूर बाकी थी। जब असगर गौंडवी साहब का इंतकाल हो गया तो जिगर ने नसीम से फिर शादी की फरमाइश की। नसीम ने शर्त रखी कि शराब छोड़ दो। हज़रत जिगर ने शराब छोड़ दी और ऐसी छोड़ी कि फिर सारी ज़िंदगी शराब को हाथ नहीं लगाया। हज़रत जिगर के क़याम भोपाल के दौरान लिखी हुई ये गज़ल का मक्ता है। भोपाल गर्चे खुल्द बदामा है ए जिगर, भोपाल गर्चे खुल्द बदामा है ए जिगर, दिल क्या शगुफ्ता हो कि नसीमे जिगर नहीं। अब उनका कलाम सुनाएंगी मोहतरमा सलमा अरस्तु साहिबा। ये पहली दफ़ा यहाँ स्टेज पे आ रही हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। आँखों में नमी सी है, चुप चुप के वो बैठे हैं। आँखों में नमी सी है, चुप चुप के वो बैठे हैं। नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। दिल संगे मलामत का हर चंद निशाना है। दिल संगे मलामत का हर चंद निशाना है। दिल फिर भी मेरा दिल है,
दिल ही तो ज़माना है, दिल फिर भी मेरा दिल है, दिल ही तो ज़माना है। आंसू तो बहुत से हैं, आंसू तो बहुत से हैं, आँखों में जिगर लेकिन, आंसू तो बहुत से हैं, आँखों में जिगर लेकिन, बिंध जाए सो मोती है, रह जाए सो दाना है, बिंध जाए सो मोती है, रह जाए सो दाना है। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है, फैले तो ज़माना है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलमा रस्तु साहिबा, और उम्मीद है आप बाकायदगी से शामिल होती रहेंगी इस प्रोग्राम में। यूं तो हज़रत जिगर हिंदुस्तान के बेशतर बड़े शहरों का सफ़र करते रहे, कभी चश्मों की तजारत के सिलसिले में तो कभी मुशायरों में शिरकत के लिए, लेकिन मुरादाबाद के बाद आज़मगढ़ में उन्होंने ज़्यादा वक्त गुजारा। मेरठ, बुलंदशहर, मंगलौर, भोपाल और हैदराबाद में भी उनकी आमदोरफ्त रही। पाकिस्तान में उनके दोस्तों की कमी न थी। तकसीम से पहले वो लाहौर में बसिलसिला मुलाजमत रह चुके थे। कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में भी वो अक्सर ठहरा करते थे, लेकिन गोंडा को ये शर्फ हासिल है कि उम्र के आखिरी हिस्से में वो मुस्तकिल तौर पर गोंडा में ही रहने लगे थे। उनकी गज़ल में चंद अशआर: ये तरीक़े ज़ुहद है खूब तर, मगर आह वाइज़ बेखबर, ये तरीक़े ज़ुहद है खूब तर, मगर आह वाइज़ बेखबर, उसे साजगार हो ज़ुहद क्या जिसे मासियत भी रवा नहीं। वो हज़ार दुश्मन जां सही, मुझे गैर फिर भी अजीज़ है, वो हज़ार दुश्मन जां सही, मुझे गैर फिर भी अजीज़ है, जिसे खाक के पा तेरी छू गई, वो बुरा भी हो तो बुरा नहीं। मेरे शेर में हैं नज़ाकतें, मेरी नज़्म में हैं लताफ़तें। ये उनके मिजाज और तबीयत को एक्सप्रेस करता है ये शेर। मेरे शेर में हैं नज़ाकतें, मेरी नज़्म में हैं लताफ़तें, मेरी फ़िक्र में कहीं ए जिगर अदे कसीफ़ की जा नहीं। अब हम उनका कलाम सुनेंगे मोहतरमा सरवत इकबाल साहिबा से। इन्होंने पिछले प्रोग्राम में पहली दफ़ा पढ़ा था और बहुत खूब पढ़ा था, तो उम्मीद है ये भी बाकायदगी से आती रहेंगी। शुक्रिया ताहिर मुसाहब। पिछली दफ़ा जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा तो साहिब सदर से इजाज़त लेना भूल गई थी। बड़ा बेअदब हूँ, सदा चाहता हूँ। दरअसल सदा नहीं चाहता, सिर्फ इकबाल जुर्म कर रही हूँ। गज़ल का पहला शेर: अल्लाह रे इस गुलशने ईजाद का आलम, अल्लाह रे इस गुलशने ईजाद का आलम, जो सैद का आलम वही सैयाद का आलम, जो सैद का आलम वही सैयाद का आलम, उफ रंगे रुखे बानिए बेदाद का आलम, उफ रंगे रुखे बानिए बेदाद का आलम, जैसे किसी मजलूम की फरियाद का आलम। पहरों से धड़कने की भी आती नहीं आवाज़, पहरों से धड़कने की भी आती नहीं आवाज़, क्या जानिए क्या है दिले नाशाद का आलम। मंसूर तो सर दे के सुबक हो गया लेकिन, मंसूर तो सर दे के सुबक हो गया लेकिन, जल्लाद से पूछे कोई जल्लाद का आलम।
اور تیرے ہجر مسلسل کی شکایت، میں اور تیرے ہجر مسلسل کی شکایت، تیرا ہی تو عالم ہے تیری یاد کا عالم۔ کیا جانیے کیا ہے میری معراج مقامی، کیا جانیے کیا ہے میری معراج مقامی، عالم تو ہے صرف ایک میری افتاد کا عالم۔ ارباب چمن سے نہیں پوچھو یہ چمن سے، ارباب چمن سے نہیں پوچھو یہ چمن سے، کہتے ہیں کسے نکھتے برباد کا عالم۔ کیوں آتش گل میرے نشیمن کو جلائے، کیوں آتش گل میرے نشیمن کو جلائے، تنکو میں ہے خود برکے چمن زاد کا عالم۔ اللہ ریس گلشن ایجاد کا عالم، جو سید کا عالم وہی سیاد کا عالم۔ بہت شکریہ۔ ایک دفعہ حضرت جگر کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ جگر صاحب نشے میں دھت ان کی درگاہ میں داخل ہوئے تو مولانا کے مریدین دوڑے کہ بھگاؤ شرابی آیا ہے، لیکن مولانا تھانوی نے سب کو روکا، جگر کو اپنے پاس بٹھایا اور کلام سنا۔ بہت مسرور ہوئے، فرمانے لگے خدا کا شکر ہے کہ حافظ کا سرور اردو میں بھی پیدا ہو گیا ہے۔ پھر جگر صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ کسی رئیس کو کلام سناتے تو انعام و اکرام ملتا، مجھ فقیر کو سنایا ہے تو دعا ہی مل سکتی ہے، لہٰذا دعا دی کہ خدا تمہیں جام طہور پلائے۔ اور وہ دن بھی آ گئے جب جگر نے واقعی شراب چھوڑ دی۔ ان کی ایک غزل میں سے 2-3 اشعار۔ دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں، فرد عمل سیاہ کیے جا رہا ہوں میں، رحمت کو بے پناہ کیے جا رہا ہوں میں، اور مجھ سے لگے ہیں عشق کی عظمت کو 4 چاند، خود حسن کو گواہ کیے جا رہا ہوں میں۔ اب ان کا کلام ہمیں سنائیں گے جناب نصیر ہمایوں صاحب۔ آداب و تسلیمات صاحب صدر کی اجازت سے اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ ان کی غزل سے پہلے 2-3 اشعار ان کے۔ عشق کی بربادیوں کو رائے گاں سمجھا تھا میں، بستیاں نکلیں جنہیں ویرانیاں سمجھا تھا میں، اور بے حجابی کو حجاب درمیاں سمجھا تھا میں، سامنے کی بات تھی لیکن کہاں سمجھا تھا میں، سامنے کی بات تھی لیکن کہاں سمجھا تھا میں، آدمی کو آدمی سے بود وہ بھی کس قدر، زندگی کو زندگی کا رازداں سمجھا تھا میں۔ ان کی غزل یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا، شعر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا، اور جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین 2 عالم پہ چھا گیا، جو دل کا راز تھا اسے کچھ دل ہی پا گیا، وہ کر سکے بیان ہمیں سے کہا گیا، نہ سے فسانہ اپنا ہنسی میں اڑا گیا، خوش فکر تھا کہ صاف یہ پہلو بچا گیا، نہ سے فسانہ اپنا ہنسی میں اڑا گیا، خوش فکر تھا کہ صاف یہ پہلو بچا گیا، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، دل بن گیا نگاہ، نگہ بن گئی زباں، آج ایک سکوت شوق قیامت ہی ڈھا گیا، اور مکتا ہے کہ میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نصیر ہمایوں صاحب۔ حضرت جگر سیاسی آدمی نہیں تھے، لیکن سیاستدانوں میں جو اچھا طبقہ تھا وہ ان کا قدردان تھا۔ مولانا آزاد اور ڈاکٹر ذاکر حسین ان کے خاص مداح تھے۔ جگر کی سادہ طبیعت اور بے باک فطرت اکثر ارباب حکومت کے خلاف بھی لکھنے سے نہیں چوکتی تھی،
लेकिन उनके यहाँ खलूस था, रियाकारी नहीं थी। यही वजह थी कि यूपी और मरकज़ी सरकार दोनों ने खुद ही उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। उनकी गज़ल में से 2 अशआर, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और चरागे दैर काबा अल्लाह अल्लाह, चरागे दैर काबा अल्लाह अल्लाह, हवा की इज़्ज़त पे जलते जा रहे हैं। और अब हज़रत जिगर का कलाम सुनाएंगे जनाब नगेश अवधानी साहब। ताजी भाई ने फिर मेरी मदद की है, तो उन्होंने जो इसको कंपोज़ किया है तो उसी में कोशिश करता हूँ। साहिब सदर, आपकी इजाज़त। ताहिर साहब, चंद अशार जिगर मुरादाबादी साहब की गज़ल के। अर्ज़े नियाज़े गम को लब आशना न करना, अर्ज़े नियाज़े गम को लब आशना न करना, ये भी एक इल्तिजा है, कुछ इल्तिजा न करना, ये भी एक इल्तिजा है, कुछ इल्तिजा न करना, अर्ज़े नियाज़े गम को जब याद आ गया है, पहरों रुला गया है, जब याद आ गया है, पहरों रुला गया है, दिल का वो मुझसे कहना, मुझको जुदा न करना, दिल का वो मुझसे कहना, मुझको जुदा न करना, अर्ज़े नियाज़े गम को मैं खूगरे सितम हूँ, परवरदे अलम हूँ, मैं खूगरे सितम हूँ, परवरदे अलम हूँ, जोरो जफ़ा के मालिक महरो वफ़ा न करना, जोरो जफ़ा के मालिक महरो वफ़ा न करना, अर्ज़े नियाज़े गम को लब आशना न करना, ये भी एक इल्तिजा है, कुछ इल्तिजा न करना, अर्ज़े नियाज़े गम को दिल जब से मर मिटा है, कुछ और ही फ़ज़ा है, दिल जब से मर मिटा है, कुछ और ही फ़ज़ा है,
میری یہ التجا ہے، تم سامنا نہ کرنا، میری یہ التجا ہے، تم سامنا نہ کرنا، عرض نیاز غم کو کوئی سمجھ سکے تو، کم بخت دل سے سمجھے، کوئی سمجھ سکے تو، کم بخت دل سے سمجھے، دل میں بھی اس کے رہنا، پھر دل میں جان نہ کرنا، دل میں بھی اس کے رہنا، پھر دل میں جان کرنا، عرض نیاز غم کو۔ آخری شعر پڑھتا ہوں۔ تیرے جگر کی تجھ سے ایک التجا یہی ہے، تیرے جگر کی تجھ سے ایک التجا یہی ہے، اپنے جگر کو اپنے دل سے جدا نہ کرنا، اپنے جگر کو اپنے دل سے جدا نہ کرنا، عرض نیاز غم کو لب آشنا نہ کرنا، یہ بھی ایک التجا ہے، کچھ التجا نہ کرنا، عرض نیاز۔ بہت شکریہ نگہت صاحب۔ اب 10 منٹ کا بریک اور اس کے بعد جگر صاحب پہ یہ پروگرام جاری رہے گا۔ پیچھے چائے اور سنیکس ہیں، پلیز۔ تو 10 منٹ کے بعد پھر ملتے ہیں۔